لڑکی اتنا کام کرتی ہی کیوں ہو کہ سر درد کرنے لگے؟ اس کا مسکراتے لہجے پر شانزے کا ایک گونا سکون سے بھرا تھا کہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ چلو آج تو مجھے ڈراپ کرنے دو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی خاموشی پر شادل بولتے ساتھ کار گیٹ کھولنے لگا۔ نہیں شادل، زیادہ درد نہیں ہے، بس ہلکا سا ہے اور میں خود چلی جاؤں گی۔ شانزے کبھی تو میری بات مان لیا کرو یار، آخر کل کو مجھ سے ہی شادی ہونی ہے، پھر کیا شوہر کی ہر بات سے یوں ہی انکار کرو گی؟ شادل کے مسکراہٹ دبا کر کہنے پر شانزے نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر پہلے والی بدمزگی اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ اب حیا کے خوبصورت رنگ گلال بکھر رہے تھے سفید آرس پر، جسے شادل نے پرشوق نظروں میں لیا۔ ریسٹورینٹ سے باہر نکلتا پیام ان دونوں کو دیکھ کر رکا تھا، پھر شانزے کے خوبصورت چہرے کو ناگواری سے گھورتے ہوئے اپنی کار پر بیٹھا تھا۔ اپنی خوبصورتی سے بھائی کو دیوانہ بنا رکھا ہے اس نے۔ اب سمجھا پیسے پر راضی کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر آفر مان لیتی تو مرتضی ہاؤس میں انٹری کیسے ملتی اس لالچی لڑکی کو؟ پر دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے اس کا ڈرامہ۔ کار میں بیٹھا ان دونوں کو تیز نظروں میں لیا وہ بڑبڑایا، پھر کار سٹارٹ کر کے تیزی میں ان کے برابر سے لے گیا۔ شادل تو شانزے کے خوبصورت نقش کو دیکھنے میں محو تھا، پر شانزے کی نظر جیسے ہی برابر سے ہوتی کار پر گئی، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایک بار پھر شیشے سے ہاتھ نکالے وہ وکٹری کا نشان بنائے اسے دکھایا تھا۔ رات کو تحریم دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے اب گھر کی جانب جا رہی تھی، پر راستے میں ہی اس کی کار رک گئی۔ چونکہ کار سنسان راستے پر رکی تھی تبھی وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ نکل کر دیکھا تو ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ شیٹ، یہ داد بخش کو کہا بھی تھا میں نے کہ ٹیوننگ کروا کر رکھا کرے، پر نہیں، گھر جا کر بخشوں گی نہیں اسے۔ غصے میں بڑبڑاتی وہ دونوں طرف نظر دوڑانے لگے۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ پہلے تو تحریم کو کچھ آکورڈ فیل ہوا کہ کبھی یوں کسی سے لفٹ نہیں مانگی تھی، پھر ٹائم زیادہ ہوتا دیکھ وہ ہاتھ کے اشارے سے گزرتی گاڑیوں کو روکنے لگی۔ کچھ دیر کی کوششوں کے بعد کوئی گاڑی تو نہیں پر ایک بائک ضرور رکی تھی۔ تھینک گاڈ، آنکھیں گھماتے ہوئے تحریم بولی، ساتھ ہی اس بائک کے قریب گئی۔ مقابل کوئی وجیہہ چہرے کا لڑکا تھا۔ سنو، مجھے لفٹ چاہیے۔ پہلی بار لفٹ مانگ رہی تھی کسی سے، تبھی فطرتاً وہ نزاکت بھرے لہجے میں بولی، جس پر مقابل کی خاموش نظریں اس پر ٹکی رہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مان بھنوں کو بھینچ کر تحریم نے اسے پوچھا۔ اسکائی بلو ٹی شرٹ پر بلو جینس پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھرا چھوڑے وہ سانولے رنگت کا نوجوان اپنے پرکشش چہرے سے کسی بھی لڑکی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں چڑیل تو نہیں ہو، کیونکہ اتنی رات کو تو چڑیلیں ہی یوں سنسان سڑک پر کھڑی رہتی ہیں۔ باسط تحریم کو سرتاپا دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چڑیل بولنے کی؟ یو سڑک چھاپ؟ وہ سلگی تو گئی تھی اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر، تبھی جو سمجھ میں آیا وہ بول گئی۔ باسط کے تاثرات بالکل نارمل رہے اس کے ری ایکشن پر۔ بلیک جینس پر پنک شرٹ پہنے، میک اپ سے لبریز چہرہ اور بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اسے پہلی نظر میں ہی کوئی امیر مگر مغرور لڑکی لگی تھی، جس میں شاید بدتمیزی کی کوالٹی بھی بخوبی بھری تھی۔ میں سڑک چھاپ ہوں تو پھر تم اس سڑک چھاپ سے مدد کیوں مانگ رہی ہو؟ یہیں پر کھڑی رہو اور انتظار کرو کسی اپنے جیسے رئیس زادے کا۔ بات مکمل کر کے باسط نے بائک سٹارٹ کی تو تحریم جواب تک گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ یکدم بوکھلائی، ارے ایسے کیسے؟ میں یہاں کھڑی رہ جاؤں اور تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا کہ یوں راستے میں کسی لڑکے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ کتنی بھی اکڑو کیوں نہ ہو؟ پر تھی تو لڑکی۔ رات کے اندھیرے سے گھبرائی جلدی جلدی سے روکنے کی غرض بولنے لگی۔ دماغ میں یہی سوچ چلی کہ مقابل سے فی الحال آرام سے بات کی جائے، کیونکہ وقت پڑنے پر تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ باسط نے اس کی بات پر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اوہ واو، تو تم مجھے تمیز سکھاؤ گی کہ کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ خیر پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ وقت پڑنے پر جس گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے اسے بھی تھوڑی بہت عزت دی جاتی ہے؟ تحریم کی سوچ کو مد نظر رکھتے وہ جیسے ہی بولا، تحریم خشک کھا کر رہ گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیسے اس کی سوچ پڑھ لی اس نے؟ دیکھو، مجھے لفٹ کی بہت ضرورت ہے، موم گھر پر ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اچانک چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت سے جائے وہ کھویا ہوئی۔ دل تو یہی کر رہا تھا کہ مقابل کو بعد میں بخشے گی نہیں، پر فی الحال مجبوری تھی۔ یہ رونی صورت نہ بناؤ، تم جیسی لڑکیوں پر سوٹ نہیں کرتا یہ سب۔ ناگواری سے بولتا ہوا بائک سٹارٹ کیا تھا، گویا اشارہ ہو بیٹھنے کا۔ ایک منٹ، میرے جیسی لڑکی مطلب؟ بیٹھنے کے بجائے وہ سیدھا میدان میں اترتے ایکسپریشن چینج کیے بولی۔ باسط کا دل چاہا اس مغرور لڑکی کو یہیں چھوڑ کر چلا جائے جو اس کا دماغ خراب کر رہی تھی اپنے ایٹیٹیوڈ سے۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تحریم کی بات اگنور کرتا وہ سختی سے بولا، ساتھ ہی ڈرانے کے تحت بائک تھوڑی آگے بڑھائی۔ وہ جو دونوں ہاتھ کو فولڈ کیے اس کے سامنے سوال کیے کھڑی تھی، فوراً بوکھلا کر بائک پر آئی اور پیچھے بیٹھ گئی۔ بات سنو۔ باسط کو اس کا لڑکوں کی طرح بیٹھنا برا لگا، تبھی اسے پکارا، کیا یہ کیسے بیٹھی ہو؟ صحیح تو بیٹھی ہوں، اور کیسے؟ اوہ ایکسکیوز می مسٹر، مجھے ان ٹپیکل لڑکیوں کی طرح بیٹھنا نہیں آتا، تمہیں لفٹ دینے سے مطلب ہے، میرے بیٹھنے سے نہیں۔ وہ جو ناسمجھی سے اسے پوچھنے لگی تھی، اچانک باسط کی بات سمجھ آنے پر اترا کر واپس اپنے ٹیون میں آتی بولنے لگی،
बाइक मेरी है तो मर्जी भी मेरी चलेगी, फ़ौरन उतरो और ढंग से बैठो वरना यही छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी बातों को खातिर में ना लाकर वो सीधे तासरात समेत बोला। तहरीम चिड़ी चिड़ी तो बहुत, पर मजबूरन फिर उधर कर सीधे होकर बैठी। कभी बाइक पर बैठी नहीं थी, तभी उससे सही बैठा नहीं जा रहा था। उसके सीधे बैठते ही बासित ने बाइक चलाई, तो वासन न संभलने पर तहरीम ने गिरने के डर से फ़ौरन बासित को पीछे से सख्ती से थाम लिया। उसके मखमली हाथों को लमस अपने पेट पर महसूस करके बासित के साथ ताज़रात में नागवारी चाहिए थी। तभी लब भींचता हुआ रास्ते पर नज़र मरकूज किए रहा। कहाँ जाना है? सुनसान सड़क से निकलने के कुछ देर बाद वो पूछा। घर जाना है। वो जो डर से उस पर सख्त गिरफ्त की आंखें बंद की हुई थी, जल्दी से बोली। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो मुझे तुम्हारे घर का मालूम होगा। भारी आवाज़ में वो उसे झिड़का था। तहरीम ने आंखें खोलकर उसकी पुश्त को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मेरे घर के ड्राइवर ऐसे नहीं होते। उसके लहजे पर चोट करती हुए अपने टोन में बोली। तो अक्लो कोई हैंडसम ड्राइवर, किसी ने मना थोड़ी किया है। वो बखूबी शीशे से उसके एक्सप्रेशन देख चुका था, तभी लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाए तंजिया लहजे में कहा, तुम और हैंडसम। इसके सांवरे रंगत को मद्देनजर रखते तहरीम ने आंखें घुमा कर कहा, कुछ कहा क्या? शोर के बावजूद उसकी आवाज़ सुन चुका था, फिर भी अनजान बनता पूछा, कुछ नहीं। मुंह बनाकर वो बोली। फिर बासित को घर का एड्रेस बताने लगी। तहरीम को ड्रॉप करते वक्त बासित ने एक नज़र उसके महल नुमा घर को देखा, यानी उसका शक सही था। वह हकीकतन एक बदलिहाज रही शादी थी। तमस्कार उड़ाती नज़रों समेत नफ़ी में सर हिलाता वो बाइक दूसरे रास्ते पर मोड़ गया। क्या उबैद, हमेशा देर कर देते हो? अलिशबा जो कॉलेज के लिए घर से निकली थी, पर कॉलेज से कुछ दूर एक पार्क में खड़ी उबैद का जब से वेट कर रही थी, और अब उसके आने पर वो मुंह फुलाए बोली थी, अच्छा सॉरी बाबा, आजकल कुछ मसरूफियत के चक्कर में देर हो जाती है मुझे। अलिशबा के मुंह फुलाने पर अलिशबा के फूले मुंह को देखकर उबैद मुस्कुराकर कहने लगा, साथ ही उसके लिए कार का गेट खोला। अलिशबा, दरअसल आज मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। प्याम ने आधे घंटे के बाद एक ज़रूरी काम से बुलाया है मुझे। अलिशबा को कार में बिठाने के बाद वो अपनी सीट पर बैठते ही गोया हुआ। ये क्या बात हुई? एक तो तुम्हारा ये दोस्त बिल्कुल, मुझे तो लगता है वो तुम्हारा मालिक है, जो कहता है वही करते हो। मैंने कह दिया, तुम उसकी बात नहीं मानने वाले। अरे भाई, मैंने कॉलेज बैंक किया है तुम्हारे लिए, और तुम होगे। लिशबा, स्टॉप इट यार, दोस्त है वो मेरा। अबैद की बात सुनकर लिशबा, जो उससे में नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी, अचानक अबैद के संजीदगी से टोकने पर चुप हुई। और मैं कौन हूँ तुम्हारी? अब वो इस्तफहामिया नज़रों से उसे घूरते हुए पूछी। ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड, बोलकर अबैद ने कार स्टार्ट की। तो फिर? लिशबा, प्याम को ज़रूरी काम है, तभी उसने। तुम ऐसा करो, मुझे यहीं पर उतार दो, वैसे भी अभी टाइम है, मैं चली जाती हूँ कॉलेज, तुम जाओ अपने दोस्त के पास। उबैद के वजाहत देने पर उसकी बात काटते उसने मुंह बनाकर कहा, तो उबैद लब भींचा। पर अलिशबा बेयकीन तब हुई जब उबैद ने कुछ लम्हे की ड्राइव के बाद सीधा गाड़ी कॉलेज के गेट पर रोकी। जाओ। वो जो उसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गई थी, अब उबैद की आवाज़ पर हैरत से उसे देखने लगी। जाओ, उबैद ने थोड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, तो बेसाख्ता अलिशबा की आंखें झिलमिलाई। तुम इडियट, बात मत करना मुझसे कभी। गाल पर पिछले आंसू को उंगलियों के पोरों से साफ करते हुए चटकने वाले अंदाज में बोलती कार से उतरी। उसके जाने के बाद उबैद ने चल पल तक कॉलेज के गेट को खामोश नज़रों से तका था। कुछ सोचकर वो नफ़ी में सर हिला था वहाँ से निकला, क्योंकि अब प्याम की कॉल उसके नंबर पर आनी शुरू हो चुकी थी। कल शादिल उसके लाख मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती खुद घर छोड़ कर गया था। रास्ते भर में उससे बातें करती शान से प्याम की धमकी को बिल्कुल फरामोश कर बैठी थी। और अब अलिशबा के कॉलेज जाने के बाद वो भी रेस्टोरेंट के लिए घर से निकली थी। रक्शे में बैठी वो बस रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाली थी कि अचानक रक्शे के सामने एक कार आकर रुकी थी। शान से जो हैरत से सामने कार को देख रही थी, उसमें से निकलने वाली हस्ती को देख उसकी हैरत नाकवारियत में बदली। प्याम, वो उसी की तरफ आ रहा था। शान से भी चेहरे के सपाट तासरा समेत रक्षे से उतरी। लगता है कल की बेइज्जती रास नहीं आई। वह बुड़बुड़ाती हुई उसे करीब आता देख रही थी। आज उसे ठीक ठाक जलील करने का इरादा रखती थी, पर उसे झटका तब लगा जब प्याम ने आते साथ उसे बिना कुछ कहे आदतन शान से का नाजुक बाजू अपने मजबूत हाथ में दबोचा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। ये वो क्या कर रहा था? शांजे का दिमाग एकदम मौफ-सा होने लगा, पर जल्दी खुद को संभालते हुए उसने प्याम से बाजू छुड़ाते हुए चीखना चाहा, छो। बाकी अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही वो शांजे के मुंह पर सख्ती से अपना भारी हाथ रख चुका था। उसे ज़बरदस्ती कार में डालकर वो भी अंदर बैठा। उबैद, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा प्याम का वेट कर रहा था, उसे यूं शांजे को ज़बरदस्ती कार में बिठाता देख मुकम्मल आंखें खोला था। ये क्या कर रहा है? वो पीछे मुड़कर खाली जहन से उसे सवाल करने लगा, जो अपनी गिरफ्त में मचलती शांजे को काबू करने की कोशिश कर रहा था। चुप करके कार चला, बाद में बताऊंगा। आह! शांजे की भरपूर मुज़ाहमत पर वो उसे मजबूती से पकड़े उबैद को बोलने लगा था, पर अचानक उसके मुंह पर जुमले अपने हाथ पर शांजे के दांत का दबाव महसूस करके वह हल्का सा रहा। हेल्प! क्या लड़की है यार, अजीब मुसीबत। प्याम का हाथ सरकने पर वो जो शीशे की तरफ मुँह किए चीखने लगी थी, एक बार फिर उसका मुंह बंद कराए प्याम झुंझलाकर बोला, तू कार चला कमीने। उबैद को खामोशी से बैठा तमाशा देख वो दहाड़ा। तभी उबैद इस बात में सर हिलाता कार ड्राइव करने लगा। क्लोरोफॉर्म लगाया है ना रुमाल में, जल्दी दे। शांजे के मुस्तकिल मज़ाहमत पर प्याम जल्दी से उबैद को बोला और शांजे के दोनों हाथों को जोड़कर अपने एक हाथ में पकड़ा। यार, वो मैं लाना भूल गया।
راستے پر نظر مرکوز کیے عبید نے بھرپور پیام سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے آہستگی سے کہا۔ دوسری طرف وہ پہلے ہی لگاتار اپنے قریب سے نکلنے کی کوشش کرتی اس لڑکی سے پریشان تھا۔ اب عبید کی بات سن کر بے ساختہ اس کا جی چاہا کہ شانزے سمیت عبید کا بھی منہ توڑ کر رکھ دے۔ ابے یار، یہ عجیب مصیبت پال لی۔ تنگ آ کر وہ چیخا، جبکہ شانزیہ مزاحمت کے طور پر اس کے سینے پر کبھی مکے برسا رہی تھی تو کبھی اس کے کندھے اور بازوؤں پر ناخنوں سے نوچنے لگی۔ شکر تھا کہ وہ جیکٹ پہنا تھا، ورنہ وہ ابھی تک پتہ نہیں اس لڑکی کے ہاتھوں کتنا زخمی ہو چکا ہوتا۔ ڈیڈ کے فارم ہاؤس چل۔ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ وہ کافی حد تک شانزے کو سنبھال چکا تھا۔ دوسری طرف شانزے بھی نڈھال ہو گئی تھی، خود کو چھڑانے کی ناکام کوششیں کرتی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے شانزے کو کار سے نکالا ہی تک وہ چیخنا شروع ہوگی۔ چھوڑو مجھے تم بے شرم انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پکڑنے کی؟ کوئی ہے بچاؤ۔ بنا روکے اس پر چیختی ہوئی ادھر دیکھ کر مدد مانگنے لگی۔ جہاں دور دور تک سناٹا تھا، اس کے مستقل چیخنے پر پیام اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے اندر لے جانے لگا۔ عبید کو وہ وہیں پر رکنے کا کہہ چکا تھا۔ اندر آ کر وہ راہداری سے تیزی میں گزرتے ہوئے شانزے کو ایک کمرے میں لے آیا۔ اس کے تیز قدموں کے ساتھ شانزے بمشکل چلتی بلکہ کسٹتی آ رہی تھی۔ کمرے میں لا کر وہ جھٹکے سے شانزے کو چھوڑا تھا اور وہ سیدھا بیڈ پر گری تھی۔ تم بدلحاظ، بغیرت، بے حیا انسان، سینس نام کی چیز ہے تم میں؟ یوں بلا جوائی یہ سب کرنے کا کیا مطلب؟ آخر کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ بیٹھ سے اٹھتی ہی وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی، جس پر کچھ دیر تک تو پیام اسے چہرہ بگاڑے دیکھتا رہا، پھر ایک ہاتھ سے اپنی کان پر چٹکی بجائی۔ شانزے جو سوالیہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی اب اس کی عجیب حرکت کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں، صحیح کام کر رہے ہیں۔ دونوں کانوں میں باری باری چٹکی بجانے کے بعد وہ خوش ہوتا ہوا بولا تو شانزے غصے میں اس انسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اب شانزے کی ہی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اوہ، تو تم کیا پوچھ رہی تھی؟ نہیں بلکہ چلا رہی تھی۔ اپنی تصحیح کرنے کے ساتھ وہ بولتا تنزیہ مسکرایا۔ گہری مسکراہٹ ہونے کے باعث گال پر گڑا بنا تھا، جس کی وجاہت کو ہمیشہ کی طرح اور نمایاں کر گیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ اب وہ باقاعدہ چیختے ہوئے پیر بڑکی تھی۔ پیام نے ایک مرتبہ اپنا کان سہلایا۔ لڑکی آرام سے، میرے پاس یہی دو کان ہیں جن سے صاف سن سکتا ہوں۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا شاید نہیں یقیناً اسے تپانے کے لیے سب بول رہا تھا۔ ساتھ ایک عدد دماغ بھی ہے تمہارے پاس جسے تم استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ بھی حاضر جوابی سے اپنا حساب چکتا کر رہی تھی۔ پیام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ بگڑے تاثرات میں شانزے کو دیکھنے لگا۔ بتاؤ نا، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ پیام کی خاموشی پر وہ ایک مرتبہ پھر چیخی۔ پریشان نہیں ہو زیادہ، تم بس ایک رات کے لیے لے کر آیا ہوں تمہیں، وہ ریلیکس انداز میں بولتا صوفے پر ٹانگ پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر شانزے پھٹی آنکھوں سے پیام کو دیکھنے لگی۔ تو وہ اسے ایک رات کے لیے لایا تھا مطلب؟ اور جو بات اس کے ذہن میں آئی تھی، شانزے کی آنکھیں پل میں بھر آئیں۔ ویسے سمجھتا کیا تھا؟ کیا وہ کوئی کھلونا ہے جسے وہ ایک رات کے لیے لے کر آیا تھا؟ تم بے مروت انسان، اگر ایک رات کے لیے لانا تھا تو کسی اپنے ہی کلاس کی لڑکی کو لاتے نا۔ صوفے کے پاس جا کر اس کے سر پر کھڑی وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے چیخی۔ دو موزے ٹوٹ کر گال پر پھسلنے لگے۔ ایک سیکنڈ رکو ذرا، میں انہیں کیوں لاؤں؟ وہ جو اب سکون سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے تھا، اب شانزے کے چیخنے پر آنکھیں کھول کر اس سے ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ پیام کے سوال پر شانزے کے گال یکدم دہک اٹھے۔ اب وہ کیا بولتی؟ لاجواب ہو کر وہ صرف اسے نم آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بتاؤ، میں کیوں لاؤں انہیں؟ شانزے کی گھوری کو نظر انداز کرتا ہوا پھر پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، ایک رات کے لیے کسی لڑکی کو کیوں لایا جاتا ہے؟ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنے طیے سے بتانے لگی۔ پیام کو لمحہ لگا تھا شانزے کی بات سمجھنے میں، اور اس کے تاثرات فوراً سے پہلے بدلے۔ ایک لگاؤں گا کان کے نیچے، جھٹکے سے کھڑا ہوتا ہوا بلند آواز میں درستگی سے بولا۔ اس کے غضبناک تیور دیکھ شانزے دو قدم پیچھے ہٹی۔ ایک رات کے لیے لانے کا صرف وہی مطلب ہوتا ہے؟ پیام کے سختی سے پوچھنے پر شانزے بوکھلائی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے اب بھی نہیں سمجھ پائی اس کی بات کا مطلب۔ مجھے بولتی ہو بے شرم؟ اپنی سوچ دیکھی ہے کتنی نیگیٹو ہے؟ ایک رات کا صرف وہی مطلب نہیں جو آپ بینڈ سمجھتی ہیں۔ اسے بھرپور شرمندہ کرنے کے لیے وہ ایسے الفاظوں کا انتخاب کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہوا، کیونکہ شانزے کا چہرہ خفت سے سرخ ہونے لگا تھا۔ ایک رات کا مطلب کہ آج رات تم اسی کمرے میں سو، کل میں خود تمہیں اس ریسٹورینٹ میں چھوڑاؤں گا، پھر سوچتے رہنا جو سوچنا ہے۔ تفصیلاً اسے اپنی بات سمجھا کر پیام جیکٹ جھٹکتا وہاں سے جانے لگا۔ ارے پر رکو، مجھے یہاں لایا کیوں ہے یہ تو بتاؤ؟ اپنی خفت مٹاتی وہ آگے بڑھ کر جلدی سے پوچھی۔ یہ تمہاری سزا ہے چھوٹی سی، کل رات مجھے ذلیل کرنے کی۔ واپس اپنی ہی دھن میں سے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ پیام بولا، پھر روم سے نکل گیا۔ شانزے کو بے ساختہ پیام کی کل والی دھمکی یاد آئی۔ شادل کو چھوڑنے کے لیے وہ پیام کا پیسہ دینے، پھر جواباً اس کو پیام کا ذلیل کرنا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ سامنے دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔
रुको, खोलो दरवाज़ा, खोलो, बात सुनो मेरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भागते हुए दरवाजे के पास खड़े होकर वो लगातार दरवाज़ा बजाती चीखने लगी। काफ़ी देर बाद भी कोई रिस्पॉन्स न मिला तो शांति गुस्से में 2-4 मुक्के दरवाजे पर मारते नीचे बैठी। पर नुकसान उल्टा उसी का ही हुआ। हाथ सोचकर बिल्कुल लाल हो गया। अपने हाथों को सहलाते और रोने लगी। जब से वो इंसान उससे मिला था तब से शांति की ज़िंदगी जीर्ण हो रखी थी। आखिर चाहता क्या था वो उससे? ये बात समझने से शांति खुद भी कासिर थी। रूम से बाहर निकलकर वो बैद के पास आया था। तभी वो प्याम से हैरानकुन लहजे में पूछा, तू करना क्या चाह रहा है भाई? उसके सवाल पर प्याम के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैली। ये बात तो तू अच्छे से जानता होगा कि मिडिल क्लास तबकात में एक चीज़ कॉमन होती है कि जब उनकी लड़कियां एक रात के लिए भी कहीं गायब हो जाती हैं तो सोसाइटी उन्हें किस नज़र से देखती है। यहाँ तक कि अगर उनकी किसी से मंगनी हो तो ये बात जानकर वो शख्स भी मंगनी तोड़ देता है जो पहले उनकी मोहब्बत का दावेदार होता है। इतनी बात कहकर वह दांतों को लबों में दबाता हंसने लगा था। उबैद अब तक यूं ही उसे देख रहा था जैसे उसके ये सब करने का मकसद जानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में सवाल देख प्याम फिर बोला, ये लड़की वही है जिसे भाई शादी करना चाहता है? और बस उबैद होंग को बना प्याम को देखे गया। उस पर सख्ता तारी हुआ था। प्याम की पिछली बात का मतलब अचानक समझ में आया था। दिमाग एकदम घुमा था उसका। कोई कैसे अपने भाई की मोहब्बत उससे दूर कर सकता था, और वो भी इस तरह के? वो लड़की पाक दामन होकर भी बरकरार रह जाती। प्याम तू काफ़ी देर बाद भी उबैद को समझ न आया कि मुकाबिल खड़े अपने दोस्त की शक्ल में इस अजीब दिमाग के इंसान को क्या कहे। सभी बातें छोड़, चल ऐसा करके तू यहाँ रुक, मैं रात को आ जाऊँगा। प्याम बोलकर उबैद की कार की तरफ बढ़ा। 1 मिनट रुक यार। प्याम के कार का गेट खोलते ही उबैद जल्दी से बोलते उसके करीब आया था। क्या यार? वो दरअसल हाँ, अलिशबा नाराज़ हो गई है मुझसे, तो उसे मनाने के लिए मुझे उसके कॉलेज जाना है ताकि छुट्टी होने पर तो ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? उबैद की बात काट कर वो कौफत भरे लहजे में बोला, ये सब मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि तू यहाँ रुक, मुझे जाना है अभी। अपनी बात मुकम्मल होने पर वो प्याम के तासरात देखता बतीसी निकालने लगा, जबकि प्याम का दिल शिद्दत से उसकी जान लेने का चाहा। मैं और उस जंगली बिल्ली के साथ कभी नहीं। ऐसा करके तू जा, मैं कुछ करता हूँ। शांजे का मुसलसल खुद पर मुक्के बरसाना और नाखूनों से नोचना याद करके ही प्याम मुंह बिगाड़ कर बोला। फिर कुछ सोचते हुए बैद को जाने का कहा, जिस पर वह सर हिलाता कार में बैठकर वहां से निकला था। उसके जाने के बाद प्याम ने वहीं खड़े मोबाइल जेब से निकाला, फिर यावर का नंबर डायल करने लगा। दोपहर को छुट्टी होने पर अलिशबा कॉलेज से निकली थी। आज उसका मूड बहुत उदास सा था। पूरा दिन बैद का रवैया सोचकर उसकी आंखें बार बार भीगती रही थी। मुश्किल से सबसे छुप कर वो अकेले में रोने लगती। इससे पहले तो बैद ने उसके साथ कभी ऐसा नहीं किया था, फिर अचानक क्यों? इन्हीं सोचों में वो रोड पर सीधा चल रही थी, तभी पीछे से आती एक मायूस आवाज़ पर अलिशबा के कदम रुके। दिल महबूब की नरम आवाज़ शोर मचा उठा था, फिर भी चेहरे के तासरात सपाट बनाए वो पलटी। अलिशबा, कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ पर तुम्हें तो जैसे होश ही नहीं। मसनूई नाराज़गी से नाराज़ लहजे में बोलता आखिर में उबैद मुस्कुराया। सुबह की मस्की का नामो निशान नहीं था उसके सभी चेहरे पर। मुझे आवाज़ें देकर तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ अपने दोस्त के पास, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। बेरुखी से कहते अलिशबा की आंखें खुद ही नम होने लगी। यार अलिशबा, सॉरी। सुबह बस मूड मेरा थोड़ा ख़राब था काम को लेकर। तुम्हें बताया भी था मैंने कि बाबा के साथ ऑफिस जाने लगा हूँ। तभी थोड़ा प्रेशर होने के बायस टेंशन रहती है। आज छुट्टी की थी तुम्हारे लिए ही, पर प्याम को भी ज़रूरी काम था मुझसे। नरम लहजे में वो उसे मनाने की गर्ज मुकम्मल वजाहत दे रहा था। अलिशबा पहले तो यूं ही उसे देखती रही, फिर नम आंखों समेत मुस्कुराई। उसको मुस्कुराता देख उबैद भी मुस्कुराया। जानता था कि वो खुद भी ज़्यादा देर उबैद से नाराज़ नहीं रह पाती थी, और उसे अलिशबा की यही आदत थी तो बहुत भाती कि उसमें और लड़कियों की तरह ईगो प्रॉब्लम नहीं था। 2 मीठे बोल पर वो फ़ौरन खुश हो जाया करती थी। अब चले? अपनी कार की तरफ इशारा करके उबैद मुस्कुराते लहजे में पूछा। नहीं उबैद, आज नहीं। एक्चुअली पेपर्स करीब हैं, मुझे तैयारी करनी है, वरना कम नंबर आने पर आप ही गुस्सा होंगी। अपनी बात मुकम्मल करते ही अलिशबा ने कंधे झुकाए, क्योंकि अब उबैद के चेहरे पर उदासी छाई थी। यार थोड़ी देर के लिए ही चल लो, आधे घंटे बाद छोड़ दूंगा। उसकी उम्मीद भरे लहजे में बोलने पर अलिशबा खिलखिलाती इस बात में सर हिलाने लगी। फिर उबैद के साथ वो सी साइड पर गई थी। वहाँ कुछ देर घूमकर उबैद उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था। उसे पता था कि अलिशबा आइसक्रीम की दीवानी है। आइसक्रीम खिलाने के बाद वो उसे घर के करीब पार्क में उतारा था। वहाँ से अलिशबा जब पैदल घर चली गई तब उबैद भी मुतमईन सा होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसने कॉल करके यावर को बुलाया था फार्म हाउस में शांति पर नज़र रखने के लिए, पर साथ ही यावर की फितरत को देखते उसे वार्न करना ना भूला था कि उस लड़की के साथ कुछ भी गलत न करे, जिस पर यावर खसिया कर हंसने लगा था। और वो रास्ते में यावर की ही कार लिए घर की तरफ जा रहा था, तब उसके जहन में ये
बात आई कि वो लड़की भूखी भी तो हो गई। पहले तो इग्नोर करके घर ही जाने का इरादा कर रहा था, पर न जाने दिल में क्या समाई कि उसने कार का रुख एक रेस्टोरेंट की जानिब कर लिया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, पर अब तक वो उसी कमरे में बंद थी। प्यार की शिद्दत से शांसे के हलक में कांटे चुभने लगे। ये कमरा काफ़ी कुशादा और सोबर मगर खूबसूरत था। फर्नीचर के अलावा उसे यहाँ कोई रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं दिखी थी। बीच में एक बड़ी सी खिड़की थी, पर अफसोस कि वह शीशा लॉक होने की वजह से वहाँ से फरार नहीं हो सकती थी। शीशा ट्रांसपेरेंट होने के बायस वो बाहर का मंजर देख सकती थी, जो कि एक वसी बाग की शक्ल में पेश कर रहा था। उसने काफ़ी कोशिश की थी शीशे का लॉक खोलने की, पर पता नहीं कैसा लॉक था, या शायद उसका लॉक बाहर की तरफ भी था। थक हार कर अब वो बेड के साइड में ज़मीन पर बैठी कई सोचों के भंवर में थी। तभी खटके की आवाज़ पर चौंकी। हाँ, तो यहाँ है मोहतरमा, खबासत भरे लहजे में शानजे को देख कर बोलता यावर कमरे में दाखिल हुआ था। प्याम के मना करने पर वो काफ़ी देर तक खुद पर कंट्रोल करता रहा, पर आखिरकार फितरत से मजबूरन होकर उठकर अंदर आ गया। कोई और वक्त होता तो शानजे उसको जलील करके रख देती, पर यहाँ पर उसका खून सूखा था कि कमरे में अकेली, ऊपर से यावर की आंखों में खुद के लिए टपकती हवीस वो काम के रह गई थी उसकी खुलीस नज़रों से। क्या बदतमीज़ी है, वो कहाँ है, उसे बुलाओ। बेसाख्ता शानजे के जहन में प्याम आया। तभी अंदर की घबराहट पर काबू पाते हुए चढ़क कर बोली। न जाने से क्यों, पर शिद्दत से प्याम की कमी महसूस हुई। शायद उससे यूं लड़ने और बहस करने से ही शानजे को एक अजनबी सी उनसियत हुई थी इस अमीरजादे से। अंदर कहीं यकीन था कि ज़रूर उसका ये दोस्त बगैर उससे पूछे शानजे के पास आया है। दिल इस बात पर मुत्तफिक था कि अगर वो होता तो शायद यावर को यहाँ नहीं आने देता। अरे जानिया अज़ीज़ी, अभी उसको छोड़ो, इसकी फ़िक्र करो जो अभी तुम्हारे सामने है। कसम से कभी सोचा नहीं था कि एक नुक़ाए-सन छुई कली भी मिलेगी मुझे। कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए यावर कमीनगी से बोलता हंस रहा था। शान से थूक निकलते राह फरार ढूंढने लगी, फिर अचानक को सोचते हुए खुद के करीब आते यावर को धक्का दिए दरवाजे की तरफ भागने लगी। पर अगले ही लम्हे शानजे की आंखें फैले जब यावर ने पीछे से उसका दुपट्टा खींचा था। पिन से सेट हुआ दुपट्टा हल्के से फटने की आवाज़ के साथ यावर के हाथ में आया था और शानजे को सकता लगा। अब कहाँ जाओगी जाने मन। उसका दुपट्टा बेड पर उछाले यावर उसकी तरफ बढ़ा था। शानजे जो दुपट्टा छूटने पर यकदम होश में आती कमरे के दरवाजे के पास भागी थी। अब ऊंचा होने की कोशिश करती ऊपर लगी चिड़खनी गिराने लगी, जो यावर ने अंदर दाखिल होते ही चढ़ाई थी। तुमसे नहीं हो पाएगा ये जान। उसे मुसलसल ऊपर हाथ के चिड़खनी खोलने की कोशिश में मगन देख यावर ने आहिस्तगी से शानजे की नाजुक कमर पर हाथ सहलाते कहा, तो शानजे बुदक कर पलटी थी। सुर्ख आंखों में खौफ की वाजिया लकीर खिंची थी। यावर को खुद के हद से ज़्यादा नज़दीक देखो तो दूर हो मुझसे। कपकपाती उंगली उठाकर उसे वार्न करते शानजे का लहजा खुद भी लड़खड़ाहट का शिकार था। उसको बुरी तरह खौफ सदा देख यावर हंसते हुए उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में की थी। छोड़ दो मुझे, उसके झटके से अपनी तरफ खींचने पर शानजे की जी कमरे की खामोशी में इर्तियाश पैदा कर गई। सीधा यावर के सीने पर लगने से शानजे को अपनी रूह परवास होती महसूस हुई थी। पूरा बदन पसीने में शराबूर हो चुका था उसका, जबकि यावर को अपने चेहरे पर झुकता देख उसके सीने पर गुस्से में मारने लगी, जिससे यावर दिल मिला गया। साली मुझे मारती है, वो चिल्लाते हुए शानजे के बालों को दबोचा सा आते उसके चेहरे को अपने चेहरे से करीब किया। इससे पहले वो कुछ गलत करता, पीछे से किसी ने यावर की शर्ट जकड़ते हुए इसका रुख झटके से पलटा था। यकायक यावर का दिमाग सुन्न होकर रह गया था जब प्याम का भारी हाथ का मुक्का उसके गाल पर पड़ा। वो जो हविस के नशे में कुछ लम्हे कबल चूर था, तो दूसरी तरफ शान से इज्जत लुट जाने के खौफ में अपने होश खोने लगी थी। इन दोनों को ही गेट बजने और प्याम के दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ ना सुनाई दी थी। प्याम वापस जाने का इरादा बदल कर शानजे का खाना लेकर आया था। वो शानजे को खाना देने के बाद फार्म हाउस से जाने का इरादा रखता था, पर जब यहाँ आया तो उसे यावर कहीं ना दिखा। उसे तशवीश हुई थी, पर जब शानजे की चीख कमरे से सुनाई दी तो बिना कुछ सोचे प्याम कमरे की तरफ भागा था और दरवाज़ा अंदर से लोग देख वो समझ गया था कि ये सब यावर का ही किया धरा होगा। उसे यावर को मारता देख शानजे तेज़ी में बेड के पास जाकर अपना दुपट्टा उठाई थी। खौफ बुरी तरह उसके जिस्म में सरायत कर गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई साले, मना किया था ना मैंने। यावर पर मुसलसल मुक्कों की बरसात किए वो गुर्रा रहा था, आंखों में जैसे खून उतर आया हो। बात तो सुन मेरी। यावर के आज जाना लहजे में बोलने को वो नज़रअंदाज किए उसे पीटे जा रहा था। कमीने तूने हाथ भी कैसे लगाया उसे। शदीद इश्तियाल से उसकी रगें फूलने लगी थी। अबे यार यकीन कर मेरी बात का, ये लड़की खुद राजी हुई थी, कह रही थी आज़ाद होने के लिए कुछ भी करेगी। यावर के घगयाने पर एक पल को प्याम का हाथ रुका था। उसने लहूरंग नज़रों से शानजे को तहैयर से देखा, जो अपने दुपट्टे से खुद को कवर किए दुपट्टा मुट्ठियों में भींचे नमज़दा मगर नफरत भरी नज़रों से यावर को देख रही थी। भीगे सुर्ख गाल और नाजुक वजूद की थरथराहट अंदर के खौफ की अक्कासी कर रहे थे, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश के तहत वो गुलाबी होंठों को एक दूसरे में पेवस्त किए खड़ी थी। बकवास करता है प्याम, मुर्तज़ा को बेअक्ल समझ लिया है क्या।
वापस उसकी दुरकर बनाता वो दहाड़ा। इतनी तो उसमें समझ थी कि जो लड़की उसके हाथ लगाने पर चीख पड़ती थी वो भला कैसे अपनी ही इज्जत खराब करने पर राजी हो सकती थी। दूसरा, बाहर से वो शानजे की चीख सुन ही चुका था। भारी हाथ के 2 और पंच पड़ते ही यावर की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसे आत्महुआ होता देख प्याम ने इसके कॉलर को दबोचते हुए यावर को घसीटते हुए बाहर ले आया। फिर पोर्च पर धक्का देते हुए चीखा, दफा हो, अपनी कार लेकर यहाँ से। इस कदर जलील होने पर यावर ने टेढ़ी आंखों से प्याम का खूनख्वार नजरों से घूरा, फिर आस्तीन से मुंह पर लगा खून साफ करते हुए कार में बैठा। दर्द से उसका जिस्म टूटने लगा था। जाते हुए वही खामोश मगर नफरत भरी नजर साइड मिरर से प्याम पर डालना नहीं भूला था। जब तक उसकी कार फार्म हाउस से चली नहीं गई, प्याम वहीं पर खड़ा रहा। उसके जाते ही वो भारी कदम उठाता अंदर की तरफ गया। कमरे में जाकर उसकी नज़र सीधे शांसे पर ही पड़ी, जब तक सपाट नजरों से दरवाजे को तक रही थी। प्याम इतना तो जान ही चुका था कि वो लड़की चाहे जितनी भी निडर बने, पर आज हुए वाक़ये से वो जरूर बुरी तरह डरी होगी। माहौल हल्का करने के लिए वह खंखारते उसके पास आया था। बात बदलने के गर्ज वह भी कुछ बोलता कि शांत से चीखी, करीब मत आओ मेरे। उसके चीखने पर प्याम हैरत में मुब्तला हुआ। तुम मुझे भी उसकी तरह समझ रही हो? वो शदीद हैरान हुआ था। एक तो बचाया था, ऊपर से उसका चीखना। जब तुम्हारा दोस्त इस कदर गिरा हुआ है तो तुम तो यकीन करो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हारा वो दोस्त मेरे साथ कुछ भी कर देता ना, तो शांति अकबर खुद को मार डालती और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम। गला रूंधने की वजह से वो बात मुकम्मल न कर पाई और फिर प्याम गड़बड़ाया था। शांति को फूट फूट कर रोता देख थकने के अंदाज में घुटनों के बल बैठकर वो आवाज रोने लगी थी, जैसे तंग आ गई हो इन सब से। उसके रोने पर प्याम सरा स्थगित से खुजाता शांति के पास आकर घुटने पर बैठा था। सुनो लड़की, शांजे। उसका नाम लेना कुछ अजीब लग रहा था प्याम को, पर शांजे को यूं ही चेहरा हाथों में छुपाए रोना उसे अनजानी शर्मिंदगी में धकेल गया था। शांजे, बात तो सुनो। अच्छा सॉरी ना। आखिरकार पहली मर्तबा प्याम मुर्तज़ा ने एक लड़की के सामने अपनी गलती तस्लीम की थी, और वो लड़की वही थी जिसे वो बहुत ही चिढ़ता था। अपनी हर गलत बात को सही बोलता। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो वाकई गलती कर बैठा था। अगर वो खाने का सोचकर वापस ना आता तो आगे उससे सोचा ना गया। अब कहीं न कहीं प्यार मुर्तज़ा की ये सोच थोड़ी बहुत साफ होने लगी थी कि हर मिडिल क्लास लड़की एक जैसी नहीं होती। सामने बैठी वो लड़की उसके लिए वाज़ेह सबूत थी कि हर बाइज़्ज़त घराने की लड़कियों को अपनी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। सॉरी यार। एक बार फिर उसके शर्मिंदगी से भरपूर लहजे में आवाज़ बुलंद बोलने पर शानज़ ने उसकी आवाज़ बेयकीनी से सुनी। क्या वो उससे माफ़ी मांग रहा था? क्या वो गरूर के नशे में चूर रहने वाला शख्स अपनी गलती मान गया था? कभी खूबसूरत मर्द देखे नहीं है क्या? शानज़ को यूँ खुद को तकता पाकर प्याम आईब्रो भींचे बोला, और अब शानज़ एकदम फट पड़ी। सिर्फ खूबसूरत होने से कुछ नहीं हो जाता, बनता सीरत का भी अच्छा हो। पर नहीं, तुम और तुम्हारे दोस्त तो एक नंबर के छिछोरे हैं। लड़की देखी नहीं कि मुंह से राल टपकने लगती है, सुकून की सांस लेने नहीं देते हो, जीना मुश्किल करके रख दिया है मेरा। उसके यूं दिल खोलकर भड़ास निकालने पर प्याम मुस्कुराहट दबाता खड़ा हुआ। उस काम में तो वो कामयाब हुआ कि चलो भले वो सुना ले, पर कम अज़ कम उसका रोना तो बंद हुआ। ये सोचकर अपने मुस्कुराहट छुपाता वो रूम से निकला ताकि किचन में उसके लिए खाना निकाल सके। एक तो किडनैप करो, ऊपर से खिदमतें करो उनकी। किचन में खाना निकालते हुए चेहरा बिगाड़ते हुए बुड़बड़ाया। रात होने वाली थी और वो शांति को रूम में बंद किए बाहर सोफे पर बैठा था। दोपहर से तो वो मोबाइल में कभी गेम खेलता रहा, कभी बोरियत मिटाने के लिए कोई मूवी देखने लगता, पर अब उसे शदीद नींद आने लगी थी। कुछ देर ऊँगते रहने के बाद आखिरकार वो गहरी नींद में चला गया था। कुछ देर बाद छनाके की आवाज़ के साथ प्याम की नींद टूटी थी। वो झटके से सोफे पर सीधा हो बैठा। दिमाग में पहली सोच अंदर रूम में बंद शान से पड़ गई थी। फुर्ती से उठता हुआ वो कमरे की तरफ भागा, पर गेट खोलने पर प्याम की आंखें भी खुली थी हैरत से। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और कमरा खाली। ओ शिट। गुस्से में अपनी सरजनिश करता हुआ भागते हुए बाहर की तरफ आता। यहाँ आकर प्याम का दिल चाहा कि अपना सर किसी चीज़ से दे मारे, क्योंकि यावर के जाने के बाद वो मेन गेट बंद करना भूल गया था। अब शायद ही नहीं, यकीनन वो मैडम भाग चुकी थी। अजीब अफलातूनी लड़की है, मैं नहीं पकड़ रहा अब, चाहे भाड़ में। झुंझुलाए लहजे में बोलकर प्याम उबैद का नंबर डायल करने लगा ताकि फार्म हाउस से वापस जा सके, क्योंकि अपनी कार तो वो लेकर ही नहीं आया था यहाँ पर। वहाँ से भागते हुए शांति को आधा घंटा हो चुका था। मुसलसल भागने से उसके नाजुक पैर दर्द करने लगे थे। हाँफते हुए घुटनों के पर हाथ रखे लंबी लंबी सांस लेने लगी। फिर अचानक दिल में डर बैठा कि कहीं वो उसका पीछा न कर रहा हो। ये सोचाते ही एक बार फिर शान से भागने लगी। कुछ दूर और जाकर शान से कोई गाड़ी रोड पर गुजरती दिखी। हाथ हिलाकर वो गाड़ी को रोकने का इशारा करने लगी। फिर सामने ही कार रुकते उसने लिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट की। पिछली सीट पर कोई सभी सूरत औरत बैठी थी, जिन्होंने बखुशी से लिफ्ट दी। वहाँ से रास्ता बताकर शांति अपने घर तक पहुंची थी। फिर उस औरत का शुक्रिया अदा करके वो अंदर दाखिल हुई। सहन में अभी कोई नहीं था, तभी शांति ने अपना दुपट्टा सही से सेट किया। फिर बिखरे बालों पर हाथ मारती वो भी कमरे में ही जा रही थी कि जमीला बेगम की उस पर नज़र पड़ गई। अरे शांति बेटा, इतनी जल्दी आ गई आज?
اس کے پاس آتے وہ حیرت سے پوچھی تو شان سے لبوں پر زبان پھیرتی انہیں چپ چاپ دیکھنے لگی۔ کیا بتاتی کہ آج کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے شان سے کے زرد ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی ٹھیک ہوں میم، مجھے کیا ہونا ہے، بس آج جلدی چھٹی لے لی یوں ہی۔ ہلکا پھلکا لہجہ بنا کر اس نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ چلو جاؤ پھر فریش ہو آؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا دوں جب تک تمہارے ابو بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ پیار بھرے لہجے میں بول کر کچن کا رخ کر گئی۔ شان سے بھی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس بات سے وہ حد درجہ خوفزدہ ہوئی تھی، اور اسی خوف کے زیر اثر اس نے شادل کو پیام کے بارے میں کال پر سب بتا دیا سوائے آج کی کڈنیپنگ کے۔ شادل نے اسے پوچھا کہ شخص کا نام کیا ہے جو اسے تنگ کرتا ہے، پر شانزے کو معلوم ہوتا تو بتاتی۔ اس کے خوف کو دیکھتے اب شادل نے شانزے سے متعلق بات مرتضیٰ صاحب سے کی تھی۔ اس نے شانزے کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی اسے شادی کی خواہش ظاہر کی، جس پر مرتضیٰ صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ شادل کے کہنے پر وہ رابعہ بیگم کی اعتراضات کو نظر انداز کرتے انہیں سختی سے تنبیہ کیا۔ دوسرے دن شانزے کے گھر پر اس کے رشتے کی بات کرنے گئے تھے۔ رابعہ بیگم تو بہت ہی روکھے پھیکے انداز سے جمیلہ بیگم اور شانزے الشبا سے ملی، پر مرتضیٰ صاحب اور اکبر صاحب کی کافی خوشگوار باتیں ہوئیں۔ بات پکی ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی شانزے اور شادل کی منگنی رکھ دی گئی۔ رابعہ بیگم نے پیام کو کچھ کرنے کا کہا، جس پر وہ صاف انکار کر گیا۔ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ منگنی میں اچانک شانزے کا سامنا کر کے اسے سرپرائز کرنا چاہتا تھا۔ آج رات ایک خوبصورت بینکویٹ میں شانزے اور شادل کی منگنی کی رسم ادا ہونی تھی۔ سبھی مہمان آ چکے تھے، صرف پیام کا ہی ویٹ کیا جا رہا تھا، جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں غائب تھا کہ کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ شادل نے کئی کالز کے بعد اس نے فون ریسیو کیا۔